Hello to all the FYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture. So we were studying the cultivation part. We have already done with the cultivation of bacteria, cultivation of actinomycetes, and the cultivation of fungi. Okay, up till now we were dealing with the cultivation which can be done using the artificial medias or different kind of the medias that can be made artificially in the lab. Okay, up till now we were studying about the cultivation of the living cells. Okay, now here on or in this section we are going to learn how to cultivate the virus. Okay, a virus cultivation is a very complex part. Okay, not very much simple as we do in the case of the bacteria, in the case of fungi, or even for the actinomyces. They all are very simple to cultivate. Okay, we can cultivate them using a simple kind of media, but in the case of viruses we need some kind of complex structures, we need some kind of a complex media, we need some kind of the complex things to grow. Okay, now why such things happen with viruses? Okay, why viruses are so difficult to grow? Okay, because nowadays we are dealing with a major virus, that is coronavirus, and we all know how much of how much of extent the viruses can go to cause harm to humans. You can imagine that virus can be a level toxic as compared to the bacteria and the other type of the microorganisms. Viruses are way ahead. Okay, so to cultivate such microorganisms which are very complex, we need a complex things to grow them. Okay, we need some kind of complex medias to grow them. Now why such things are we need to deal with viruses very differently. Okay, now what happens is that viruses are not the normal microorganisms. Okay, they are parasitic. Okay, they are going to survive or they are going to live on the living cell. Okay, that is the one important feature of the viruses that make them impossible to grow on non-living matter or the artificial matter. Okay, or the chemical based we say media. Okay, so for that thing viruses are being cultivated on the living things or living cell or even living animals. वेरी हार्ड टू हियर एंड येट इट इज़ ट्रू दैट वायरसेस को अगर आपको कल्टिवेट करना है तो आपको उनके लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस देने पड़ेंगे. जैसे कि हमें एक तो डायरेक्टली वी नीड टू गिव देम द लिविंग सेल्स और वी विल हैव टू गिव देम द लिविंग एनिमल इटसेल्फ और ऑर्गन और एक तो कोई एग. ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मीडियाज लगते हैं वायरसेस को ग्रो होने के लिए या हमें अगर उनको ग्रो करना है तो इसलिए. ओके, तो वाई दिस थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स विद द वायरसेस? बिकॉज वायरसेस जो होती है आपको भी पता है आजकल हम एक ह्यूज सिचुएशन से डील कर रहे हैं, दैट इज़ द कोरोना वायरस. इट्स नेम इटसेल्फ इज लाइक अ क्लियर इंडिकेशन दैट वायरसेस आर the next level toxic or the next level harmful to us. Okay, so such things which are more, we can say, which are more extended as compared to the bacteria, as compared to the fungi, then we can imagine how much complex things we need to give them to grow. तो अगर ऐसे वायरसेस को आपको ग्रो करना है तो हमें थोड़ी से हटके न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, हटके मीडिया देना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्यों? तो वायरसेस जो होते हैं ना वो पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब क्या कि ऑब्लिगेट मतलब क्या कि कंपलसरी. ओके, हमें उनको अगर ग्रो करना है तो वी नीड टू गिव देम अ कॉम्प्लेक्स थिंग दैट इज़ द सेल, लिविंग सेल. हमें उनको लिविंग सेल देना पड़ता है. लिविंग सेल क्यों? क्योंकि वायरसेस होता क्या है, वायरस एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें होता है एक प्रोटीन कोड और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये प्रोटीन कोड इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो भले ही इसका स्ट्रक्चर सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स थिंग ये है कि ये बिना सेल के, लिविंग सेल के, क्योंकि ये असेलुलर है.
ठीक है। इसके पास खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं है, खुद की मशीनरी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन इट इन्फेक्ट्स द लिविंग सेल इट यूजेस द मशीनरी ऑफ दैट सेल एंड दैट्स हाउ इट सर्वाइव्स। वो खुद के बलबूते पे सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको कोई लिविंग सेल लगता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लगता है जिस पे वो ग्रो हो पाए, क्योंकि ये पैरासाइट है। पैरासाइट का मीनिंग ही ये होता है कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स को अगर आपको लैब में कल्टीवेट करना है तो आपको उनको देना पड़ेगा, उनको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट, और वो क्या है, इट इज़ अ लिविंग सेल और इट इज़ अ लिविंग एनिमल। ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ अब वायरसेस की अगर आपको एग्जांपल दूँ तो इट कैनॉट बी ग्रोन ऑन दी नॉन लिविंग टाइप ऑफ द मीडिया, जो हम न्यूट्रिएंट अगार वगैरह यूज़ करते हैं, इन पे इनको ग्रो करना इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि ये असेल्युलर है, ठीक है। तो इनको जो रेप्लिकेट होने के लिए, क्योंकि इनका जो सर्वाइवल होता है वो फुल्ली बेस्ड होता है ऑन द रेप्लिकेशन। ये अगर रेप्लिकेट हुए तो ये सर्वाइव करेंगे, और रेप्लिकेट होने के लिए इनको लगती है लिविंग सेल की मशीनरी। ओके, फॉर दैट पर्पज़ वायरसेस आर नाउ ग्रोन ऑन दी लिविंग सेल। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ वायरसेस के, तो दे आर स्मॉल पॉक्स, फ्लू वायरस है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, एड्स का वायरस है, HIV वायरस वी ऑल नो, देन नाउ रिसेंट वन वी ऑल नो कोरोना वायरस। सो लाइकवाइज मैनी वायरसेस आर देयर, हर्पीस वायरस इज देयर, पोलियो वायरस इज देयर, जो मेजरली ग्रो होते हैं ऑन द लिविंग सेल। नाउ अगर आपको उनको कल्चर करना है, उनको ग्रो करना है, तो कुछ मेथड्स लगती है। तो वो मेथड्स कौन सी है, तो इन विवो एंड इन विट्रो। नाउ व्हाट इज इन विवो एंड इन विट्रो? इन विवो मतलब क्या, इनसाइड द सेल और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड एज इन विवो। ओके, इन विट्रो मतलब क्या, आउटसाइड द सेल। ओके, मतलब जो नेचुरल कंडीशन होती है उसके आउटसाइड। ओके, जो कंडीशन हम क्रिएट करते हैं नेचुरल का, हम वी कैन से मिमिक्री करते हैं लैब में, देन इट इज़ कॉल्ड एज इन विट्रो। इन विवो मतलब क्या, हम डायरेक्टली नेचुरल कंडीशन, फॉर एग्जांपल नेचुरल एनिमल हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, नेचुरल एग हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, वो हुआ इन विवो। इन विट्रो मतलब क्या, कि जहाँ पे आप लोग नेचुरल एनवायरनमेंट की मिमिक्री करेंगे, उसका एक रेप्लिका बनाएंगे या उसका एक मॉडल बनाएंगे, और उसका यूज़ करके आप किसी का कल्टीवेशन कर रहे हो, देन इट इज़ द इन विट्रो टाइप ऑफ द कल्टीवेशन। ओके, सो नाउ तो इन विवो कल्टीवेशन में आप कौन से मेथड यूज़ करते हो, तो हम डायरेक्टली एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम उनके टिश्यू या ऑर्गन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन विट्रो में हम कौन सा कल्चरिंग यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ द सेल और डायरेक्टली टिश्यू कल्चर मेथड। ओके, तो हमें ये वायरस का कल्टीवेशन करना ही क्यों है, क्यों इतनी झंझट करनी है हमें, क्यों वायरस का कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है? तो पहली चीज़ तो ये दैट हमें उनका आइडेंटिफिकेशन करना है कि उस सैंपल में कौन सा वायरस है। हमारे पास एक सैंपल है, उसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, या फिर कोई नया वायरस है, तो हमें उसको आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई करना है, तो हमको वायरस का कल्चर करना पड़ेगा। ओके, देन द सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आपको उस पर रिसर्च करना है, ओके, आप अगर आगे जाके साइंटिस्ट बनोगे तो आपको उस पर रिसर्च करना है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वायरस, हाउ इट रेप्लिकेट्स, हाउ इट ग्रोज ऑन द होस्ट, एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन द होस्ट। वो होस्ट पे या फिर जो सेल है उस पर क्या इफेक्ट करने वाला है, उस पे कैसे रेप्लिकेट होने वाला है, उस पे कैसे ग्रो होने वाला है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करने वाला है, उसकी जेनेटिक्स बेसिस क्या है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड टू कल्टिवेट द वायरस। नाउ द थर्ड important thing here is to prepare the virus for the vaccination. ओके, वैक्सीन अगर आपको बनानी, फॉर एग्जांपल रिसेंट हमें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा वायरस का, क्योंकि वैक्सीन क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एंटीजन होती है, एक फॉर्म ऑफ वायरस ही होती है, और वायरस का बस पैथोजेनिसिटी निकाल लो, दैट इज़ द वैक्सीन। और यही वैक्सीन अगर आपको लैब लेवल पे बनानी है तो आपको उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्यों हमें कल्टीवेट करना है वायरस। एक तो आपको उसको आइसोलेट करना है, दूसरा आपको इसकी स्टडी करनी है, तीसरी चीज़ अगर आपको वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। नाउ
विच आर द मेथड्स दैट आर बीन यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। ओके, तो 3 मेजर मेथड्स है। एक तो आप डायरेक्टली एनिमल इनोकुलेशन कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप उसको एग, ओके, एम्ब्रियोनेटेड एग, एम्ब्रियो जिसमें है ऐसे एग मतलब क्या, मतलब ऐसा अंडा जिसमें एम्ब्रियो ग्रो हो चुका है, ठीक है। अंडा थोड़ा सा पुराना है, अराउंड 7 डेज, ओके, 7 to 12 डेज का अंडा है जहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है, अंडे में से योग का एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है। तो ऐसा अंडा अगर आप यूज़ करो, दैट इज़ नथिंग बट द embryonated egg. Okay, now third thing or the third procedure which we use for the cultivation of viruses is tissue culture. Okay, now ये 3 चीज़ों से आप जो है वायरस का कल्टिवेशन इन द लैब लेवल कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ बीन यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरस इज एनिमल इनोकुलेशन। ओके, नाउ इसका नाम ही क्या है कि एनिमल इनोकुलेशन, जीता जागता एनिमल, ओके, लेना है, उसमें वायरस को इंजेक्ट करना है एंड देन वी आर गोइंग टू आइसोलेट द वायरस फ्रॉम दैट एनिमल्स ब्लड। ओके, तो यही प्रोसीजर को बोला जाता है एनिमल इनोकुलेशन, जहाँ पे भी डायरेक्टली यूज अ ग्रोन एनिमल, यंग एनिमल। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब ऐसे भी वायरसेस हो सकते हैं कि वो जो वायरसेस है वो एक तो एक पे ग्रो नहीं हो सकते या कोई टिश्यू पे ग्रो हो नहीं सकते, उसको जिंदा एनिमल चाहिए। ऐसे कुछ थोड़े टेढ़े वायरसेस हो सकते हैं, तो ऐसे वायरसेस को ग्रो होने के लिए वी यूज़ द एनिमल। अब वो एनिमल कौन से हो सकते हैं फिर? इट कैन बी माइस, इट कैन बी पिग, गुनिया पिग, इट कैन बी हैमस्टर, इट कैन बी रैबिट। ओके, तो ये सब एनिमल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वो जो एनिमल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो फॉर द इनोकुलेशन, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो कंटामिनेट हो सकता है फिर, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, वो हेल्दी चाहिए एंड इन्फेक्शन फ्री चाहिए। ओके, देन वो माइस जो है उसमें इंजेक्ट करके, अब वो माइस भी कैसा, 48 आवर्स ओल्ड माइस, मतलब बच्चा, ओके, लिटरली बच्चा हमें लेना है माइस का। देन माइस की एक चीज़ होती है कि वो लोग ससेप्टिबल होते हैं फॉर द टोगा वायरस एंड द कॉक्सैकी वायरस। ओके, अब इसकी वजह से आप ये दोनों वायरसेस इनोकुलेट कर सकते हो उनमें और उनका स्टडी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से वायरसेस? टोगा वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस। ओके, तो ये जो दोनों वायरसेस है आपको इनोकुलेट कैसे करने हैं? थ्रू द इंट्रासेरिब्रल और द इंट्रानेजल रूट। ओके, अभी आप कहोगे क्या टेढ़े मेढ़े नाम है, तो इंट्रासेरेब्रल मतलब थ्रू द ब्रेन वेसल्स। ओके, वहाँ से आपको इनोकुलेट करना है, वायरस को इंजेक्ट करना है, या तो फिर आप उनको इंट्रानेसल मतलब जो नेजल लाइन होती है आपकी, एक तो उसके वेंस पे या आर्टरीज पे इंजेक्ट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट इनोकुलेशन आपको क्या करना है, उनको रख देना है एनिमल्स को उनके नॉर्मल एनवायरनमेंट में। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि क्या होता है फिर वायरस को इंजेक्ट करने के बाद वो आराम से उस एनिमल में ग्रो हो पाता है, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वायरस इजीली ग्रो हो जाता है। तो हम उन एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि उस वायरस ने डिसीज़ कॉज किया है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, रैशेस दिखेंगे, फीवर दिखेगा आपको। तो ये सिम्टम्स के लिए आपको उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वायरसेस है, ओके, तो इनके जो टिश्यू होते हैं या इनका जो ब्लड होता है उनमें अब सिम्टम दिखने के बाद, ओके, सिम्टम दिखने के बाद आपको क्या करना है, उनके टिश्यू में से या उनके जो ब्लड है उसमें से आपको वायरस आइसोलेट करना है, ठीक है। देन इवन एक एक विषय एक प्रोसेस किया गया था फॉर दी येलो फीवर वायरस, ठीक है। तब साइंटिस्ट लोगों ने डायरेक्टली ह्यूमन में भी वो वायरस का स्टडी करने के लिए ह्यूमन इनोकुलेशन भी किया था। तो यू कैन थिंक कि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज ट्राइंग हार्ड टू रिसर्च, और वो फिर जो भी स्पेसिमन हो वो ले लेते हैं और उनमें वो आइसोलेशन या इनोकुलेशन करके दे स्टडी द डिफरेंट थिंग्स। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे एनिमल्स आजकल यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड, तो एनिमल्स को ऐसे यूज़ किया जाता है। तो एनिमल्स में बस एक चीज़ को याद रखना है कि दैट एनिमल शुड बी हेल्दी एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटामिनेशन और एनी काइंड ऑफ द डिसीज। ओके, सेकंड थिंग इज दैट उनको वो एनिमल 48 आवर्स ओल्ड होना चाहिए। इट मे बी माइस, इट मे बी द पिग, इट मे बी द हैमस्टर, रैबिट एक्सेट्रा। ओके, तो उस माइस में डायरेक्टली इंट्रासेरेब्रली और इंट्रा
नेजली उसमें इनोकुलेट करना है, इंजेक्ट करना है वायरस को, एंड देन वी विल ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम्स आपको दिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके टिश्यू में से, उसके ब्लड में से आपको वायरस प्यूरिफाई करके आइसोलेट करना है। ओके, देन एडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या फ़ायदा है एनिमल इनोकुलेशन का दोनों मेथड से, तो ये है कि हम सिम्टम्स के थ्रू आप उनका इजीली हमको पता लग सकता है कि वो वायरस उस सैंपल में प्रेजेंस है कि नहीं। देन मतलब किसी पर्सन का अगर आपके पास सैंपल है और आपको पता करना है उस पर्सन में वो डिसीज़ हुआ है कि नहीं, तो आप इजीली वो डायग्नोस कर सकते हो यूजिंग द एनिमल इनोकुलेशन। ओके, द सेकंड थिंग इज़ दैट हम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इंजेक्शन या इंजेक्ट करने के बाद वायरस का एनिमल में आप इजीली एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, देन प्राइमरी आइसोलेशन भी कर सकते हो। अगर आपको प्योर वायरस चाहिए या बहुत सारा वायरस चाहिए, तो अगर आपको ऐसे आइसोलेट करना है तो वी कैन यूज़ द एनिमल इनोकुलेशन टेक्निक। द वन मोर टाइप ऑफ एडवांटेज इज दैट इट इज़ अ आइडियल मॉडल, कंफर्टेबली आप इजीली वायरल रेप्लिकेशन एनिमल इनोकुलेशन करके स्टडी कर सकते हो। वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये जो टेक्निक है इट कैन बी यूज फॉर दी एपिडेमियोलॉजी स्टडी, इम्यून रिस्पॉन्सिस स्टडी, ऑन्कोजेनेसिस स्टडी, मतलब वो वायरस कैंसर कॉजिंग है कि नहीं वो भी हमें पता चल सकता है, वो कैसे स्प्रेड होता है ये भी हमें पता चल सकता है कि वो कॉन्टेजियस है या नहीं है। देन अगेन वन मोर थिंग, इम्यून रिस्पॉन्सेज की उसके अगेंस्ट बॉडी कौन से रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है वो भी हमें पता लग सकता है थ्रू द एनिमल इनोकुलेशन। इसके डिसएडवांटेज, कोई भी टेक्निक के एडवांटेज और एडवांटेज साथ में होते हैं, तो यहाँ के जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि थोड़े से एक्सपेंसिव है, क्योंकि क्या होता है कि हमें एनिमल का मेंटेनेंस करना पड़ता है, उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, उनको प्रॉपर कंडीशंस देनी पड़ती है, तो इट इज़ अ वेरी हार्ड टू मेंटेन देम। ओके, एक्सपेंसिव भी हो जाता है देन समटाइम्स। देन वन मोर थिंग इज़ दैट ये कुछ ह्यूमन वायरसेस, ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन वायरसेस है, मैमलियन वायरसेस है, तो दे कांट बी ग्रोन समटाइम्स, ओके, नॉट ऑलवेज ऑन दी एनिमल्स। ओके, देन वन मोर थिंग इज़ दैट कि कौन सा वायरस कौन से एनिमल के लिए सुटेबल है हमें नहीं पता, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ द एनिमल फॉर द सुटेबल वायरसेस। ओके, देन माइस जो होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम हमेशा ही एनिमल इनोकुलेशन नहीं यूज़ कर पाते फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। देन अगेन द इश्यूज रिलेटेड टू द एनिमल वेलफेयर सिस्टम। ओके, एनिमल वेलफेयर सिस्टम जो इस्टेब्लिश्ड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, क्या हो रहा है कि एनिमल्स को रिसर्च में यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से एनिमल्स का जो काउंट है, नंबर है, वो डिक्रीज हो रहा है एंड फूड चेन ऑब्वियसली कोलैप्स हो सकती है। तो दैट्स वाई दैट सिस्टम, द एनिमल वेलफेयर सिस्टम, वो भी इस चीज़ के खिलाफ है या उनको अपोज करती है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। नाउ द सेकंड टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस, इट इज़ द एम्ब्रियोनेटेड एग कल्टिवेशन। ओके, जो हम इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ओके, फॉर दिस वी नीड टू रिमेंबर द एनिमल इनोकुलेशन, हाउ इट इज़ डन, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनेटेड एग्स की मदद से हम कैसे वायरस को कल्टिवेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।